A very good morning and Assalamu alaikum to all my lovely and energetic students. Welcome back for online classes. Student, I heartily welcome you all. I hope you all are doing very fit and fine at your home. And I hope that you all are studying for your exams also. Your exams are going to be start very soon, right student? Already we have provided you the syllabus also, timetable also, and even the practice worksheet. Student, I request you each and every one, please go through your practice worksheet also, even all your CW notes and plus your textbook exercise. Student, yesterday in the group already I have forward chapter number 18 textbook exercise question answers also. I request to refer that also for your periodic test too. And student, before 2 days means on last Saturday I have upload one video from where you can find all your chapters of your PDF. If few of the students who have not written any of the chapter which is in your PT2 exam, so you can go to that particular video, open that video. In that there is a one down arrow, open that arrow, click that, you will find the link over there. As soon as you will click the link, you are going to be find how to open the PDF files. So from that also you can take your help. And please, whenever you write your exams paper, please write very neatly and tidily. Use pencil and write your full name, write the roll numbers correctly, write your own roll number only correctly. Your standards has been already written, you have to write the correct division. Okay student, you can take the guideline of your parents, but the paper you have to write by yourself only. Your parents can guide you, but writing work you have to do. If we are going to find any handwriting of the parents, then students, you are going to cut your marks. So please do not do that student. Try to write the papers by yourself. I appreciate all the students for periodic test 1 as well as for the term 1 that you have done your paper very nicely, very honestly, and you have written by yourself only. So keep it up for that. Now student, our second chapter of recapitulation, today we are going to see chapter number 11 from here to there. This is the second recapitulation of our periodic test 2. There are 4 chapters in our exam: chapter number 6, chapter number 10, chapter number 11, and chapter number 18. Today I have took chapter number 11 recapitulation. So I request all the students to please take out your textbook, and in a very short explanation I'm going to just explain you this chapter. Now, as you all know that in this chapter what we have learned, in this chapter we have learned about the different types of the vehicle, right? That which vehicle used for what reason, right? And how many types of transportations are there, right? We have learned about this in this chapter. This now there is an first of all a small poem related to train. Student, we play these games mostly, right? In our house हम ये game खेलते हैं, right? We are making a train with the help of our friends, है ना? हम अपने friends के पीछे शोल्डर्स पर हाथ रख कर या तो उनकी फ्रॉक्स को पकड़ कर या शर्ट को पकड़ कर हम ट्रेन गाड़ी खेलते हैं ना, छुक 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 करके ऐसे खेलते हैं, राइट? इवन वी प्ले समटाइम दिस गेम्स इन अवर स्कूल ऑल्सो, राइट? So I'm going to read this poem just for you and I will explain you in a shortly. So come on children, let's play a game. Climb aboard the chuk chuk train. Blow your whistle and take your seat on two shoulders, if you please. Now what this girl is telling, जिसके हाथ में ये green color का flag है, she is telling to her friend, come on friends, now we are going to play one game, that is a train game, chuk chuk gaadi train. In this what you have to do, you have to put on your shoulders, यानी you have to take your seats on the shoulders of your friends. आपको अपनी फ्रेंड्स के शोल्डर्स पर हाथ रखकर ये ट्रेन को चलाना है.
see, you can see in this picture how the students have carry, means how they have hold their hands, right? उन्होंने अपने हाथ को किस तरीके से होल्ड किया है, एंड देन दे आर प्लेइंग द गेम. Forward, backward, backward, forward, but in a line, do not run outward. ये जो पिंक कलर के फ्रॉक में ये जो फर्स्ट लड़की है वो शी इज़ टेलिंग, जिसके हाथ में ग्रीन कलर का फ्लैग है, शी इज़ टेलिंग टू ऑल हर फ्रेंड दैट फॉरवर्ड मतलब आगे जाओ, बैकवर्ड में यानी पीछे आओ. तो वो ये बोल रही है कि मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी, वही इंस्ट्रक्शंस आपको इस गेम में फॉलो करने हैं. तो क्या इंस्ट्रक्शन दे रही है? आगे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, आगे जाओ. बट याद रखना, आप सब ट्रेन बने हो तो ट्रेन एक ही लाइन में रन होती है, ट्रेन जिगजैग रन नहीं होती है. यानी व्हेन द ट्रेन रन्स ऑन द रेलवे ट्रैक, है ना, एकदम स्ट्रेट जाती है ना. सो वो उसके फ्रेंड्स को भी बोलती है कि आप भी ऐसे स्ट्रेट रहना, आगे पीछे मत होना. स्टे इन अ लाइन एंड शाउट योर आइज, with open eyes you will nothing spy. Chuk chuk chuk, the train is on its way. Stop stop stop, all the stations say. What she is telling कि ट्रेन स्टार्ट होती है तो कैसी आवाज़ करती है? छुक 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 आवाज़ करती है. तो शी इज़ टेलिंग कम ऑन, अब हम ट्रेन को स्टार्ट कर रहे हैं, सभी लोग आवाज़ निकालो. सो मैं भी आपको बोल रही हूँ, आप ब्लू कलर की फ्रॉक वाली लड़की को देखो, व्हाट शी इज़ डूइंग, है ना, वो ट्रेन का इंजन है और देखो सभी इसको पीछे से पकड़ कर दे आर रनिंग, राइट. तो सभी लोग ऐसे मुंह पर ऐसे हाथ रखो और आवाज़ निकालो, है ना. ट्रेन की आवाज़ ऐसी होती है ना, छुक 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 छुक, राइट. और वो क्या बोलती है? स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ऑल द स्टेशन से, सभी स्टेशन बोलते हैं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ. ऑन रोड ऑफ आयरन वी मूव to and fro. Here comes the lights and there they go. Across the melodies, over the hills, past again farms, temples, meals. कितनी ये सब बोल रही, कितनी सारी चीज़ें रास्ते में आती है. ट्रेन आता है, माउंटेन्स आते हैं, हिल्स आती है, फार्म्स आती है, बहुत सारे विलेजेस आते हैं, ग्रीन फील्ड्स आते हैं, ब्राउन कलर की वॉल्स आती है, पोटैटो फील्ड्स आती हैं, राइट. नाउ सी व्हाट नेक्स्ट. Smoke clouds, fires and clothes, village fairs, riders on the meals, flocks of the birds, chittles herds. यानी ये क्या बोलती हैं? गाड़ी में से स्मोक निकलता है तो ऐसा लगता है कि स्काई बन गया, राइट. बहुत सारी फील्ड्स आती है, विलेज के फार्म्स आते हैं, फेयर्स आते हैं, यानी मेले हमको क्रॉस, यानी ट्रेन ये सारी चीज़ों को क्रॉस करते जाती है. नाउ सी, वी आर गोइंग टू रीड अवर चैप्टर. Come, let's meet some children and find out how they spend their vacation. अब हम कुछ बच्चों को देखेंगे और वो किस तरीके से अपने वेकेशन को पास ऑन करते हैं वो देखेंगे. Now she is a girl. I went to my uncle who lives in Delhi. अब ये लड़की क्या बोलती है? मैं अपने अंकल के घर गई थी वेकेशन में, who was living in Delhi. Either we used to go from the railway station to his house in the bus. Was she telling that we go when I used to go to Delhi to my uncle's house? After the railway station, we take a bus to go for her house, to go for his house. ये लड़के ऐसा बोलते हैं कि रेलवे स्टेशन पर जैसे ही हम उतरते हैं तो हम एक बस में बैठकर अपने अंकल के घर तक हम जाते हैं. बट This time it was great fun. We went by in train. इस बार ये लड़की बोलती है कि इस बार हम बस से नहीं गए, इस बार हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया. क्यों? क्योंकि इस बार हम ट्रेन से गए थे. Which train? Let's see. Which went through an underground tunnel, यानी मेट्रो ट्रेन, राइट स्टूडेंट. बहुत सारी जगहों पर मेट्रो ट्रेन है, दिल्ली में है, मुंबई में है, अभी तो गांधीनगर भी स्टार्ट हो गई, राइट, मेट्रो ट्रेन. तो ये लड़की ऐसा बोलती है कि हम फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठे थे, वो भी मेट्रो ट्रेन जो ज़मीन के अंदर से होकर गुजर रही थी. वी डिड नॉट इवन कम टू नो दैट कार्स वेर रनिंग ऑन द रोड अबाउट द टनल. ये लड़की ऐसा बोल रही थी कि हमें तो पता ही नहीं चला कि ट्रेन अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के नीचे से जा रही है और ट्रेन के ऊपर से सब
स्कूटर्स, ट्रक्स, कार्स और वो सब पास हो रहे हैं, यानी ऊपर रोड है और ट्रेन अंदर जा रही है. सो दैट वाज अ वेरी गुड फन. नाउ सी द नेक्स्ट बॉय व्हाट ही इज टेलिंग. नाउ ही इज टेलिंग दैट it was my bua's wedding. I met many relatives. We had a good time eating, drinking and playing. अब ये लड़के की किसकी शादी है? बुआ. बुआ हु इज़ बुआ? आपके फादर की जो सिस्टर होती है उसको क्या बोला जाता है? बुआ बोला जाता है, राइट? तो उसके बुआ की शादी थी, तो ये लड़का वहाँ गया था और वहाँ उसने अपने बहुत सारे रिलेटिव्स को मिला. स्टूडेंट, हु आर द रिलेटिव्स? रिलेटिव्स किसको बोला जाता है? आपके मम्मी पापा के जो रिलेटिव्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, आपके चाचा चाची, मामा मामी, काका काकी, बड़े पापा बड़ी माँ, ताऊ जी ताई जी, ये सब आपके क्या होते हैं? रिलेटिव्स. अब वो ऐसा बोलता है मैं अपने सभी रिलेटिव्स को मिला और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया. हमें खाने में, पीने में और खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया. Bhaiya came from America in an aeroplane. Imagine, he came from so far, but he reached here in one day. What this boy is trying to say that कि भैया अमेरिका से यहाँ ये शादी को अटेंड करने के लिए आए, बट आप सोचो अमेरिका इंडिया से कितना दूर है, फिर भी वो एक ही दिन में पहुँच गए. Why? Because of the aeroplane. स्टूडेंट, एरोप्लेन कौन सा मोड है? विच ट्रांसपोर्ट मोड? वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट के लैंड ट्रांसपोर्ट? सो एरोप्लेन इज अ एयर ट्रांसपोर्ट क्योंकि ये हवा में उड़ता है, राइट? बुआ लुक्स वेरी ब्यूटिफुल व्हेन शी वॉज गोइंग इन अ डोली. दुल्हन की शादी हो जाती है तो वो डोली में बैठ कर जाती है, राइट? सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ डोली. सो ही इज़ टेलिंग कि बुआ बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी अपनी डोली में जाते हुए. नाउ सी द नेक्स्ट गर्ल. आई वेंट टू माई नानी हाउस इन केरला. व्हाट शीज गर्ल इज़ टेलिंग कि मैं अपनी नानी के घर गई थी अपना वेकेशन करने के लिए, और उसकी नानी कहाँ रहती थी? केरला में. Where she lives there is water everywhere. Now what this girl is telling कि मेरी नानी केरला में जहाँ रहती है वहाँ everywhere यानी चारों तरफ क्या है? water यानी पानी है. From the station यानी जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पर उतरी, we could have taken a bus or a car. ये लड़की ऐसा बोलती है जैसे मैं स्टेशन पर उतरी मैं बस में भी बैठ सकती थी या तो फिर मैं कार में भी बैठ सकती थी अपनी नानी के घर को पहुंचने के लिए. बट उसके अलावा वी टुक एंड बोथ स्ट्रीम यानी उसने क्या बोला? ना ही हमने बस को हायर किया ना ही हम कार में बैठे, बट बस और कार की जगह पर हम एक और चीज़ में बैठ कर गए अपनी नानी के घर तक. वो क्या थी? बोट. टू हर हाउस. इट फेल अ लिटिल स्टेयर बट वी हैड फन. ये लड़की ऐसा बोल रही, पहले तो मुझे थोड़ा डर लगा बट बाद में धीरे धीरे हमें पानी में बैठकर यानी बोट में बैठकर बहुत मज़ा आया. इन द केरला स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द केरला's एरिया इज सिचुएटेड नियर द वाटर. बहुत सारी ऐसी जगह है केरला में कि आप वहाँ पर गाड़ी और बस से नहीं जा सकते, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको पानी के थ्रू ही जा सकते हो. तो पानी में तो सिर्फ बोट के अलावा और कुछ चलता नहीं है. बोट एंड फेरीज. अब फेरीज किसको बोलते हैं स्टूडेंट? केरला में मोस्ट ऑफ फेरी चलती है, केरला गोवा साइड में. मैंने आगे के लेसन में बहुत ब्रीफली इसको समझाया है, बट इन रिकैपिटेशन मैं आपको बहुत शॉर्टली और स्वीटली समझाऊंगी. ओके, फेरीज को बोलते हैं जिसमें गाड़ियाँ भी जा सकती हैं और आदमी भी एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं. हमारे दहेज में भी फेरी स्टार्ट हुई है, पता है? देखा है आपने? नाउ सी द नेक्स्ट. We went to Shimla during the vacation. Now this boy is telling in the vacation we went to Shimla. हम अपना पूरा फैमिली शिमला में गया वेकेशन करने. The bus to move on the zigzag road on the hilly high mountains. What this boy is telling कि अरे वहाँ माउंटेन के रास्ते तो जिगजैग थे. जिगजैग यानी सांप की तरह इधर उधर होकर जाते थे
और इतनी हाइट माउंटेन पर ऐसी गाड़ियाँ दौड़ रही थी। इट वॉज वेरी स्कैडी, स्कैडी यानी ये बहुत डरावना था, डर लगता था हमें। When we looked down, we had to walk a long distance in Shimla. अब ये बोलता था जब हम पहाड़ों से नीचे देखते थे और बस जिगजैग दौड़ती थी तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगता था। बट वी हैव वॉकड अ लॉट इन शिमला, बट हमें लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस चल कर बहुत जाना पड़ता था। कहाँ? शिमला में। माई दादी वुड गेट टायर्ड वेरी क्विकली। वॉट दिस बॉय इज टेलिंग कि मेरी दादी बहुत ज़्यादा थक जाती थी क्योंकि शी इज़ ओल्ड नाउ, शी कैन नॉट वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस। वी वुड मेक हर राइड ऑन अ हॉर्स, बट हम उनको हॉर्स पर बिठा देते थे। आई नेवर गॉट टायर्ड, आई एन्जॉयड वॉकिंग। और ये लड़का क्या बोलता है कि मैं तो कभी नहीं थका चलते हुए, मुझे तो बड़ा मज़ा आया, मैं तो आराम से चलता था। हम दादी को हॉर्स पर बिठा देते थे। नाउ सी द नेक्स्ट। Now see what this girl is telling. My khala lives very close to our house. ये लड़की क्या बोल रही है कि my khala lives very close to my house. Student, खाला किसको बोला जाता है? Your mother's sister is known as खाला, है ना, मासी, right? मासी को हम खाला बोलते हैं, right? Whenever I feel like going to her, I quickly climb on my bicycle and rush to her place. Ma and Chotu have to take an auto rickshaw to go to Nani house. Now what this girl is telling कि जब भी मुझे खाला के घर जाना होता है मैं तुरंत ही अपनी बाइसिकल यानी साइकिल को निकाल लेती हूँ और मैं साइकिल की मदद से अपनी खाला के घर में कुछ ही सेकेंड्स में पहुँच जाती हूँ। बट मतलब बट मम्मी और छोटू यानी मम्मी को और उसके छोटे भाई को अगर नानी के घर जाना पड़ता है तो दे हैव टू टेक एन ऑटो रिक्शा, उनको ऑटो रिक्शा में बैठकर जाना पड़ता है। नाउ सी द नेक्स्ट। आई वेंट टू माई मामा जीज विलेज। नाउ व्हाट दिस बॉय इज टेलिंग कि मैं अपने मामा जी के विलेज तक गया। फ्रॉम देयर द रेलवे स्टेशन देयर इज नो बस गोइंग टू हिज विलेज। ये तो अजीब बात है। ये लड़का बोलता है मैं रेलवे स्टेशन से अपनी मामा के विलेज तक गया। जैसे ही मैं विलेज पर वहाँ रेलवे स्टेशन के बाहर उतरा वहाँ तो एक भी बस नहीं थी, यानी कोई बस गाड़ी स्कूटर वहाँ गांव तक नहीं जाता था। तो क्या जाता था? लेट्स सी। सो वी वेंट इन अ बुलक कार। इसलिए हम कहाँ बैठे? बुलक कार्ड में। बुलक कार्ड यानी ऑक्स चलाते हैं और उसके पीछे ऐसी बैठने की सीट वाली लारी होती है, उसको बोला जाता है बुलक कार्ड। वी क्रॉस अ ल्यूज ग्रीन फील्ड्स ऑन द वे ऑफ द विलेज। आई लव द साउंड ऑफ द बेल टाइड अराउंड द नेक ऑफ द बुल। अब ये लड़का क्या बोल रहा है? हम इस पर बैठकर तो गांव तक पहुंच गए, बट इतनी ग्रीनरी थी, इतने खेत आ रहे थे ग्रीन कलर के, इतना अच्छा लग रहा था। और मुझे एक और चीज़ बहुत पसंद आई, ये जो बुल के गले में नेक के पास वो लोग ने जो बेल लगाया था उसकी बहुत खूबसूरत आवाज़ थी, टन टन टन, यानी वो जैसे जैसे आगे चलते जा रहे थे वो आवाज़ ऐसी अच्छी बजती रहती थी। तो ये बॉय बोलता है कि मुझे तो बहुत पसंद आया था। सो स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट द 3 ट्रांसपोर्टेशन। हमने 3 ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में बस है, कार्स है, बुलक कार्ट है, हॉर्स कार्ट है, लारी है, साइकिल है, स्कूटर है, सब कुछ लैंड ट्रांसपोर्ट में चलता है। वाटर ट्रांसपोर्ट में सारी बोट्स चलती है ना, नाव चलती है, शिप्स चलती है, कार्गो शिप्स चलती है, बहुत सारी ऐसे याट है, सब कुछ कहाँ क्रूज़ वो सब कहाँ चलता है? वाटर में। एयर में हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, बलून है ना, हॉट बलून, एयर, ये सब कौन सा ट्रांसपोर्ट हुआ? एयर ट्रांसपोर्ट, जो हमें हवा की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। सो स्टूडेंट, here we have completed our chapter number 11. Student, this all previously I have given you in your वीडियो, राइट, और मैंने इसका PDF भी आपको फॉरवर्ड किया है, बट स्टिल नॉट टू वरी,
Inshallah, tomorrow I will forward this writing work again to you. You can complete in your textbook. Otherwise, you can go through for the PDF. So, student, here we have completed our chapter number 11 from here to there. Inshallah, we are going to meet very soon with the new chapter with new recapitulation. Till then, please take care of yourself, stay healthy because it's the cold season. Protect yourself, wear a sweater and protect yourself, keep yourself warm. Please have a hot water and take care of yourself. Okay, till then, stay home, stay safe. Allah Hafiz. Thank you.